Good morning, students. So, today we will revise your lesson number 4, The Enemy, written by Pearl S. Buck. So, before you read, it is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? So, let's see in the story. Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pipes. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." So, the writer introduced the main character of the story, Dr. Sadao Hockey. Dr. Sadao's house was situated on the coast of Japan. He had been living there since his childhood. जो मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, डॉक्टर सदाओ हॉकी, उनका जो घर है वो एक जापानी कोस्ट एरिया में है और वहाँ वो जब बहुत ज़्यादा छोटे थे बचपन से ही वहाँ रह रहे थे। वो वहाँ खेला भी करते हैं। एंड द हाउस हैड लो हाइट्स एंड वॉज मेड ऑफ स्टोन। और जो उनका घर वहाँ पे बना था वो स्टोन से बना था और रॉक के एकदम टॉप में ऊपर था। और जो उनके घर के साइड में लाइन में सभी पाइन के ट्रीज़ लगे हुए थे। और जब डॉक्टर सदाओ छोटे थे, व्हेन डॉक्टर सदाओ वाज अ चाइल्ड, ही वुड क्लाइम अप टू द पाइन ट्रीज़, क्योंकि उन्होंने अक्सर साउथ सीज़ में जब वो जाया करते तो वहाँ अक्सर उन्होंने मैन को देखा था कि वो किस तरीके से कोकोनट के पेड़ में चढ़ जाया करते हैं। तो उसी से वो इंस्पायर हुए और वो भी पाइन के ट्री में उसी तरीके से क्लाइम किया करते हैं। And he would accompany his father to the island of the South Seas often. His father would point towards the island and would say that those were the stepping stones towards the future of the Japan. और उनके फादर भी उनके साथ आइलैंड में जाया करते और वो इशारे करते हुए आगे जो सी आइलैंड जो आइलैंड थे उनकी तरफ उन्हें इशारा करते हुए उनके लिए कहते कि ये जो आइलैंड है जापान के भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। तो आगे इस पर उनसे जो डॉक्टर सदाओ है वो पूछा करते, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली. हु नोज? हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. तो डॉक्टर सदाओ उनसे पूछा करते कि वहाँ से हम कहाँ जाएंगे? तो इस पर उनके फादर रिप्लाई करते कि his father would reply that it was not known as it depended on the future. The future had no limits. It depended on mankind how it shaped its future. यानी कि हमारे भविष्य को कौन सी सीमाओं में बांध सकता है, हम अपने भविष्य को कौन सी सीमाओं में बांध सकते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या बनाएंगे. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent in at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility, Sadao was being kept in Japan. So the Sadao retained all the things that his father would tell him as a child. His father never played a joke with him. They shared a mature relation, and his father underwent a lot of hardships to bring him up.
जो डॉक्टर सदाव थे वो अपने फादर की हर एक बात माना करते, और अ, उनके बीच में जो रिलेशन था, और वो ज़्यादा मजाक अपना उनके फादर डॉक्टर सदाव के साथ ज़्यादा मजाक नहीं करते थे, बट उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन, उनका अच्छा रिलेशन था। और डॉक्टर सदाव जानते थे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके फादर ने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेन सहा है, और उनका मेन कंसर्न जो था वो सदाव की एजुकेशन था। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और इसी के लिए जब जो डॉक्टर सदाव थे, जब वो 22 ईयर्स के हुए तो उन्हें फर्दर एजुकेशन के लिए अमेरिका भेज दिया गया। और वहाँ पे उन्होंने क्या लर्न किया? सर्जरी एंड मेडिसिन। एंड जब वो वापस आए तो उनके फादर की मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटे सदाव को एक फेमस सर्जन होते हुए देख लिया था, और सर्जन के साथ साथ साइंटिस्ट भी। साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डिस्कवरी की थी कि चोट को, वुंड को कैसे इंटायरली ठीक किया जा सके। और यही वजह था कि उन्हें फिर वापस अब्रॉड नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि एक डेंजर था, एक वॉर की स्थिति थी, जो हमने स्टार्टिंग में ही लेसन में देखा, बिफोर यू रीड्स में हमने पढ़ा था कि जापान में उस टाइम वॉर की सिचुएशन थी, और उस सिचुएशन के चलते इस बात का अंदेशा लगाया गया था कि जो ओल्ड जनरल है उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। फ़िलहाल उन्हें मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, बट पूरी पॉसिबिलिटी थी कि डॉक्टर सदाओ को उनका ऑपरेशन करना पड़े, जिसकी वजह से उन्हें जापान में ही रुकने के लिए कहा गया था। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cloud waves. Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. Writhing around the pipes, in a few minutes fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. The writer describes the scene outside Dr. Sadao's house. As the days were unusually warm and the sea waves were cold, the nights became foggy. Dr. Sadao saw the boundary of a nearby island become invisible gradually as it got covered in the mist. और fog में होने के कारण जो 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 फॉग था, जो ऊपर से आ रहा था, वो उसके बीच में उनके घर में भी एकदम छा गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि फॉग जैसे ही घर के अंदर आया तो वो अंदर आए, डॉक्टर सदाव अंदर अपने घर में आए, जहाँ पर वो उनकी वाइफ, जिनका नाम क्या है, हना, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है कि उनकी वाइफ भी हैं, और हना। और जब वो आती हैं तो हना उनका वेट कर रही थी ऑलरेडी उनके 2 चिल्ड्रंस के साथ। तो यहाँ भी आपको इंट्रोड्यूस हो गया है 2 न्यू कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज़ हना, जो कि डॉक्टर सदाव की वाइफ है, और उनके 2 चिल्ड्रन। But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue villain Hauri over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally, at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people anxious to do something for their few foreign students, and the students, through board, had accepted this kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble, but he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible.
So before Sadao could go inside, the door opened and his wife looked out for him. She was wearing a dark blue colored gown over his dress. यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया किमोनो, किमोनो क्या होता है? अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द किमोनो. तो जो हम ड्रेस के ऊपर से जो पहनते हैं वुलन हाउरी, दैट इज़ किमोनो. तो इसी को हाउरी भी कहते हैं. एंड जैसे ही जो ऑथर थे डॉक्टर सदाओ थे, जैसे ही एंटर करते हैं तो वो अपनी वाइफ को देखते हैं. तो वाइफ ने क्या पहना होता है? डार्क ब्लू वुलन हाउरी. और जो ऑथर की वाइफ है हना, जो डॉक्टर सदाओ की वाइफ है हना, वो उनका वेट कर रही होती हैं और वो बड़े ही अफेक्शनेटली अपने आर्म्स उन डॉक्टर सदाओ को होल्ड करती हैं एंड एक स्माइल देती हैं और कुछ नहीं कहती हैं. ही हैड मेट हना इन अमेरिका. डॉक्टर सदाओ हना से अमेरिका में मिले थे. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापनीज. बट वो तब तक उनके साथ प्यार में नहीं पड़े जब तक कि उन्हें ये कन्फर्म ना हो गया हो कि वो एक जापनीज़ है. And Sadao considered himself to be lucky to have accidentally met her at an American professor's house. He wondered that had he not met her, he would not have got a wife all his life. तो इस बात के लिए वो खुद को बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं कि उन्हें हना मिली. और वो कई बार ये भी सोचते हैं कि अगर उन्हें वो ना मिली होती तो वो किससे शादी करते, क्या वो करते. He thought that the professor and his wife were kind as they were sorry. So he thought that the professor and his wife were kind as they were keen to help foreign students. He was glad that they had accepted this kindness and went to their house because it was there that he had met Hana. तो अब वो जब अमेरिका में अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए गए थे मेडिकल की, तो वहाँ पे उनके एक प्रोफेसर थे जिनके घर पे ही वो कई फॉरेन स्टूडेंट्स की हेल्प किया करते थे और उन्हीं के घर पे वो हना को भी मिले. एंड आगे फर्दर सदाओ वुड ऑफन टेल हना दैट इट वॉज अ मेयर कोइंसिडेंस दैट ही वेंट टू द प्रोफेसर्स हाउस that night as the room in his house was small and the food was not good and the professor's wife was very talkative. और आगे वो उन्हें बताते हैं कि वो बहुत जिस दिन वो फर्स्ट डे प्रोफेसर के हाउस में हना से मिले, उस दिन वो नहीं जाने वाले थे क्योंकि रूम बहुत छोटा था और खाना भी कुछ खास नहीं था. और जो उनके प्रोफेसर की वाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी. If he had not gone there that night, he would not have met Hana. At that time, Hana was a new student. Sadao had thought that he would love her if at all it would be possible for him. और डॉक्टर सदाओ बहुत लकी अपने आप को फील कर रहे थे कि अगर उस रात वहाँ पे नहीं गए होते तो वो हना से नहीं मिल पाते. हना वहाँ पे न्यू स्टूडेंट थी उस टाइम और वो ये सोच रहे थे हना के लिए कि जो वो सोच रहे थे हना को देखते हुए कि अगर देखते ही उन्होंने ये सोच लिया कि अगर कहीं भी ये पॉसिबल हुआ तो वह उनसे हना से डॉक्टर सदाओ डेफिनेटली लव करेंगे. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. Even though they had been married years enough to have the 2 children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheeks against his arm. Sadao and Hana love each other, even having 2 children. After many years of marriage, they had not married in a haste in America. Rather, they returned to Japan, sought permission from the parents, and then got married in a traditional Japanese ceremony. Sadao और हना एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और
शादी के इतने सालों बाद भी उन्हें सेम वो लव उनके बीच में, वो बॉन्ड, वो अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में है। और जैसे ही वो अपना हाथ उन्हें डॉक्टर सदाओ के ऊपर रखती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है इस बात से। हालांकि आगे राइटर ये भी बता रहे हैं कि उनकी शादी को इतना टाइम हो गया है कि उनके 2 बच्चे भी हैं। और क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो दोनों ही अमेरिका में मिले थे, लेकिन दोनों ही जापानीज़ हैं। और जो उनकी शादी थी उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका में ही नहीं की, वो यहाँ पे आए जापान में और अपने पेरेंट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हुई, बातचीत हुई और ट्रेडिशनल जापानीज सेरेमनी के अकॉर्डिंग उनकी शादी हुई। एंड ये सब उन्होंने पहले ही, शादी से पहले ही डिस्कस कर लिया था और वो खुश थे एक दूसरे के साथ। और हना रेस्टेड हर चीक्स अगेंस्ट सदाओ's arm विद अफेक्शन, और उसके बाद उन्होंने अपने चीक सदाओ की आर्म में प्यार से रखा हना ने। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung, it seems, to his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the curled mist hid him again. Mist means haze, धुंध, ठीक है। सो उसी टाइम जब ये सीन था तो उसी टाइम उन्होंने क्या देखा कि धुंध से कुछ ब्लैक ब्लैक उन्हें दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में उन्हें क्या पता चला कि वो जो ब्लैक ब्लैक जो उन्हें धुंध में दिखाई दे रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एक मैन है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग मीन्स थ्रोन, फेंक देना। तो ऐसा लग रहा था मानो ओशियन से उस आदमी को किसी ने बाहर फेंक दिया हो। इट सीम्स टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ही स्ट्रैगल्ड अ फ्यू स्टेप्स, और वो वहाँ से थोड़े कुछ स्टेप्स बाहर चला। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और धुंध में उसकी बॉडी दिख रही थी, जो बॉडी की आउटलाइंस, कुछ लाइंस उन्हें दिख रहे थे। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, देन द कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन, और ये देखने के बाद जो वो धुंध फॉग था उसमें अगेन वो आदमी कहीं छुप जाता है, गुम हो जाता है। Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. A fisherman, perhaps, Sadao said, washed from his boat. He ran quickly down the steps, and behind him Hannah came, her white sleeves flying. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous and with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. फिर हना चीखते हुए कहती है कि अरे वो कौन है। तो जैसी सदाओ और जैसी वो उस ब्लैक फॉग में उस आदमी को देखती है तो हदाओ डॉक्टर सदाओ के हाथ जो उन्होंने रखा होता है उनको हटा देती है। और वो जब वहाँ से देख रहे होते हैं तो वो जो आदमी है वो रेंगते हुए चल रहा था और ये पता लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा उसे चोट लगी है। फिर उन्होंने देखा कि उसके चेहरे के जो वो जो गिरा हुआ था वो फेस के बल गिरा हुआ था, चेहरे के बल गिरा हुआ था, मतलब चेहरा नीचे था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई फिशरमैन है। डॉक्टर सदाओ को ऐसा लगा कि ये कोई फिशरमैन है जो कि मे बी ओशन में कुछ उनके साथ एक्सीडेंट हुआ और इस तरीके से हो गया। तो वहाँ से फटाफट गए और हना उनके पीछे पीछे वहाँ पे चली गई। और कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस है, कहीं कोई नहीं। उन्हें लगा कोई फिशरमैन है क्योंकि आसपास फिशिंग विलेजेस भी थे, लेकिन जब वो वहाँ रॉक पे देखने गए तो वहाँ पे कुछ उन्हें बाकी और कोई नहीं दिखा। और जो वहाँ के रॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। क्यों? क्योंकि उन रॉक्स में स्पाइक मीन्स जो
नुकीली चीज़ें होती हैं, शार्प पॉइंटेड होती हैं, उन्हें स्पाइक कहा जाता है। तो वो जो रॉक्स थे जिस पे वो गिरा हुआ था वो आदमी, उन रॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा स्पाइक निकली हुई थी, पॉइंटेड, उनके शार्प्स बहुत ज़्यादा पॉइंटेड थे, इसीलिए वो डेंजरस था कि पहले ही वो वोंडेड है, ऊपर से उस रॉक्स के ऊपर है। देन समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ही मस्ट बी बैडली टॉर्न। तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और रॉक के कारण और ज़्यादा उनकी जो चोट थी वो ज़्यादा और ज़्यादा लग गई, हो गई। Then they saw when they came towards him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. और जब वो वहाँ पास आए और उन्होंने देखा कि सच में ऐसा ही था, उसके एक तरफ जो रेत पर जो रेत थी उस पर पूरे खून के सूखे हुए धब्बे वहाँ दिख रहे थे। तो इतना ज़्यादा उसको चोट लगी थी उस मैन को। He is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garment. Sadao stopped, Hana at his side, and turned the man's head. They saw the face. A white man, Hana whispered. तो उन्होंने देखा कि वो जो मैन था वो काफ़ी ज़्यादा वुंडेड था और इस पर सदाओ ने उसने देखकर बोला कि ये तो पूरी तरीके से घायल है। और जल्दी से जो वो व्यक्ति था, जो मैन था, उनका फेस रेत के बल वो क्योंकि गिरा था तो फेस पूरा मिट्टी में रेत में था। और जो उनकी कैप, सर पे कुछ कैप लगी हुई थी, वो समुद्र के पानी की वजह से, सी वाटर की वजह से पूरी की पूरी गीली हो रखी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसका फेस देखेंगे। तो उन्होंने टर्न करके उस जो मैन था उसका सर देखा। तो वो देखते ही जो हना है वो बोलती है कि अरे ये क्या है, ये तो एक वाइट मैन है। Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hairs, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. इसके बाद जो डॉक्टर सदाव है वो अपनी वाइफ के बाद इस पर हामी भरते कि हाँ ये एक वाइट मैन ही है। और जो उसकी जो गीली कैप थी, जो वेट कैप थी उसकी, उसमें उन्होंने उसके जो उसके हेयर्स देखे कैप के नीचे तो वो येलो रंग के थे। तो उससे वो अंदाज़ा हो गया कि वो एक वाइट मैन ही है। और उन्होंने उनके बालों से और फेस में जो बियर्ड थे उससे अंदाज़ा लगाया कि काफ़ी वीक से उसने शेविंग या बाल कट नहीं किए थे, काफ़ी लंबे समय से। और वो एकदम अनकॉन्शियस था वो आदमी। और जो उसके साथ उसको, वो अनकॉन्शियस हालत में था, इसलिए उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है फ़िलहाल। He knew nothing that they did for him. Then now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. और क्योंकि हमें पता है कि सदाओ डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और उनके हाथ अपने आप ही चोट को ढूंढने लग गए उस आदमी की बॉडी में। Blood flowed freshly at his touch on the right side of her lower back. Sadao saw that a gun wound had been reopened. और क्योंकि उसको हाल ही में चोट लगी हुई थी, काफ़ी फ्रेश ब्लड बह रहा था। एंड द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर। और जो उसका जो फ्लैश था वो काफ़ी ज़्यादा खून काफ़ी बहने की वजह से वो पूरा एरिया ब्लैक हो चुका था। समटाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड. और अब उन्हें पता चल गया था कि कुछ ही टाइम हुआ था कि उस आदमी को कहीं शॉट गोली लगी थी, जिसकी वजह से, और उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया था, इस वजह से वो पूरा एरिया फ्लैश ब्लैकेंड हो चुका था। और ये एक बैड लक था उस आदमी के लिए, उस मैन के लिए, कि इतनी चोट के बाद वो उस रॉक में, जो कि जिसके बहुत ज़्यादा पॉइंटेड एज थे, वो उससे टकराने की वजह से वो घाव और ज़्यादा हरा हो गया और उससे और ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. The mist screened them now completely.
And at this time of the day, no one came by. The fisherman had gone home, and even the chance beach combers would have considered the day at the end. इसके बाद उसकी जो वाइफ थी डॉक्टर सदाओ की, है ना, वो कहती हैं कि इनको इससे इतना खून कैसे बह रहा है। और अब धुंध इतनी ज़्यादा थी, जो जो पहले धुंध में जब सब कुछ हाइट सा हो रखा था, वो अब पूरी तरीके से ढल गया था। और दिन का समय था, वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी फिशरमैन वहाँ पे नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। एंड व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, Sadao muttered, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. What shall we do with this man? सदाओ मटर्ड मीन्स विस्परिंग। तो सदाओ विस्पर करते हुए कहता है कि अब हम इस आदमी के साथ क्या करें। और स्नैच मीन्स स्टॉप, रोकना। देन आगे वो कहता है कि क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है, वो ट्रेंड हाथ है उसके, वो एक डॉक्टर है, तो अगेन वो जो उसे अपना पता है कि जब ब्लीडिंग हो रही हो तो किस तरीके से घाव ढूंढते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो वही चीज़ करने लग गया। एंड देन ब्लीडिंग रोकने के लिए वो ढूंढने लगा। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस। नाउ सी मॉस क्या होता है? जो समुद्र में एक जो एल्गी रहता है उसे कहते हैं सी मॉस। तो वो जो समुद्र के आगे जो वो एल्गी, रेड एल्गी रहती है, उसे सी मॉस कहते हैं। तो वो जो स्ट्रूड मीन्स स्प्रेड, फैलना। तो जो बीच के साइड में वो जो सी मॉसेस फैले हुए थे, द मैन moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. Now stupor is मेंटल इनसेंसिबिलिटी। जो वो अनकॉन्शियस वे में जो आदमी था उसके लिए यूज़ किया गया है कि वो वहाँ पे पड़ा हुआ था घाव से, लेकिन उसे पेन की वजह से वो मौन तो कर रहा था, गुनगुन कुछ बड़बड़ तो कर रहा था, लेकिन वो होश में नहीं था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड, आंसरिंग हिमसेल्फ। तो सदाव क्या कहता है, सबसे बढ़िया काम क्या होगा कि उसे वो वापस वहीं से में रख दे। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. ब्लीडिंग बहना बंद हो गया था, तो डॉक्टर सदाव खड़े हुए, उन्होंने अपने हाथ से जो भी डस्ट था वो सब क्लीन किया। और हना ने भी इस बात में हामी भरी कि येस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, हाँ ये करना ही ठीक होगा कि हम इसे वापस समुद्र में ही छोड़ दें। बट शी कंटिन्यू टू स्टे डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन ये कहने के बाद भी वो उस जो घाव में इस वक्त जिसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और अनकॉन्शियस वे में वहाँ पड़ा हुआ है, वो उसको देखे जा रहे थे। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die. सदाव आगे कहते हैं कि अगर हम इसको अपने घर में लेकर जाते हैं तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दिख रहा है कि वो एक प्रिजनर है, वो कहीं से भाग के आया है, ठीक है। और अगर हमने उसे वहाँ छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. और सबसे सही काम क्या होगा कि वो उसको द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि सबसे सही काम तो क्या होगा कि हम उसे वापस सी में ही छोड़ दें। हाँ, उनकी तरफ से काइंडेस्ट थिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि देख लेने के बाद भी वो आदमी को या पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि उन्होंने एक प्रिजनर को, जो कि एक जापानीज़ भी नहीं है, एक वाइट मैन है, और उन्होंने देखा है। तो उनकी तरफ से एक काइंडेस्ट थिंग थी कि वो इस बारे में और किसी को नहीं बता रहे हैं और वापस उसको सी में छोड़ दे रहे हैं उसी हालत में। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड,
They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. "What is he?" Hannah whispered. "There is something about him that looked American," Sadao said. He took up the battered cap. "Yes, there, almost gone, was a faint lettering. A sailor," he said, "from an American warship." He spelled it out. U.S. Navy. The man was a prisoner of war. तो अब उन्हें ये चीज़ पता चल गया था कि वो जो आदमी है जो कि वो अनकॉन्शियस वे में वहाँ पड़ा हुआ था, वो एक भागा हुआ सोल्जर था, वो एक यूएस नेवी का था, और अब वो किसी प्रिजनर से भागकर वहाँ पे पड़ा हुआ था, जो कि ये सब उन्होंने कहाँ से पढ़ा, उसकी कैप से. "He has escaped," Hannah cried softly, "and that is why he is wounded in the back." Sadao agreed. तो हना इस बात पे कहती है कि हाँ, ये एक भागा हुआ आदमी है, तभी इसको इतनी चोट लगी हुई है, जिस बात पे सदाओ भी एग्री करते हैं. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, "Come, are we able to put him back into the sea?" "If I am able, are you?" तो जो सदाओ की वाइफ थी हना, कहती है कि चलो हम इसको पकड़ते हैं और वापस समुद्र में डाल देते हैं. "मैं कर रही हूँ, क्या तुम ये कर पाओगे?" "No," Hannah said, "but if you can do it alone." तो हना इस पे कहती है कि अगर तुम इसे अकेले कर दो तो. डॉक्टर सदाओ ने कहा कि हम इसे वापस सी में डाल देते हैं, और जिस पे क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो हना कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, अगर तुम ये काम अकेले कर सकते हो तो कर लो. Sadao hesitated again. "The strange thing is," he said, "that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy. And he is only a common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded..." तो अब सदाओ भी थोड़ा हेजिटेट होते हैं, क्योंकि वाइफ कह तो रही है कि वापस डाल दो, बट हेल्प नहीं कर रही है इस बात पे. कुछ ये क्यों उन्हें ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. तो इस पर सदाओ कहते हैं कि अगर इस आदमी को इतना ज़्यादा चोट ना लगी होती, अगर ये अनकॉन्शियस ना होता, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये इसे पुलिस में हैंड ओवर कर देते हैं. बट क्योंकि वो काफ़ी चोट लगी है उनकी तरफ से, तो वो एक अमेरिकन है और हर एक अमेरिकन उनका एनिमी है, और वो भी. लेकिन क्योंकि वो अनकॉन्शियस वे में है, लेकिन क्योंकि वो अनकॉन्शियस है और वो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं है, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट है, इसीलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.